Today's top stories are Alia and Sid's showdown at a party. SRK कर रहे हैं इम्तियाज for help in his next project. Salman says he was falsely implicated in the Arms Act case. Deepika's dinner date with Novak Djokovic. Hey guys, I'm Caitlin and you're watching Spot Boys, Sab Kuch Bollywood. Spot Boy. Alia and Sid have been pretty vocal about their feelings as of late. Directly to nahi, but Alia ne a lot of times confessed kiya hai her liking towards Sid. And now Spot Boy brings you a scoop that will make you even more sure about their equation. Take a look, guys. Alia Bhatt loves to party. कुछ दिन पहले Spot Boy told you all about her wild night out at Air Lounge in Mumbai. जी हाँ, the same time जब Alia and girlfriends party till the wee hours and got super happy. हम बात कर रहे हैं about the time she blew rupees 1.5 lakh on partying. अब बात करती है आलिया की पार्टी नंबर 2 की. लोकेशन थी सेम, यानी कि एयर लाउंज एट द फोर सीजन्स होटल इन मुंबई. पर इस टाइम आलिया के साथ थे उनके स्वीट हार्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा. आलिया के स्कूल फ्रेंड्स ने थ्रो की थी ये बैश और सब कर रहे थे इवनिंग को एंजॉय until Alia's ex Ali Dadarkar showed up. Talk about awkward. Alia and Ali went to the same school और दोनों romantically involved भी थे at one point. Now the problem started when Ali tried to talk to Alia again and again and again. So Alia's not interested in Ali as she moved on a long time ago, पर Ali करते रहे persist. जाहिर सी बात है कि उनके current boyfriend सिद्धार्थ को पसंद नहीं आई Ali के advances and they both ended up having a nasty fight. The lovers were in a bad mood. सब देख रहे थे द कपूर एंड सन स्टार्स को एकदम उखड़ा. So in 15 to 20 minutes, the two decided no point in staying on for the party. तो इन बॉलीवुड स्वीटहार्ट्स ने कर लिया खुद को एक्सक्यूज. नॉर्मल लाइफ में स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है. बॉयफ्रेंड मना लेते हैं गर्लफ्रेंड को एंड इट्स बैक टू हंकी डोरी. पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, तो नेचुरली स्टोरी में है मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. तो सुनिए ध्यान से कि बाद में क्या हुआ. So घर आकर पहले आलिया ने अपनी WhatsApp स्कूल ग्रुप को छोड़ दिया and then she blocked her ex on her phone. Ouch. Salman Khan and his cases just don't get over, do they? Latest on this is कि सलमान के Arms Act केस में आ गया है एक new update. What is that? Well, let's find out. और अब the latest update on Salman Khan. कुछ घंटे पहले द स्टार appeared before a जोधपुर कोर्ट और उन्होंने किया अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड इन द 17-year-old Arms Act case. Later, सलमान के लॉयर ने मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा that his client was falsely implicated. Salman got embroiled in the case while shooting for Suraj Barjatia's Hum Saath Saath Hai in 1998. The case under Arms Act was registered after the weapons allegedly used by Salman for hunting down 2 black bucks were found with expired licenses. A separate case against poaching is still underway. केस की अगली hearing है 4 अप्रैल को. Shah Rukh Khan is known to be the industry's बादशाह and he rightly lives up to his name as आजकल SRK help कर रहे हैं इम्तियाज अली को in his forthcoming venture. Spot Boy को पता चला है कि SRK is brainstorming and jamming with Imtiaz on the film subject. शाहरुख खान है a super busy man. फैन रईस और गौरी शिंदे की नेक्स्ट में बिजी है SRK. पर in spite of all this वो वक्त निकाल रही है to help a friend. शाहरुख और इम्तियाज टीम अप कर रहे हैं for a film, पर ये नहीं होगी a typical इम्तियाज movie. शाहरुख is helping the director reinvent himself. इम्तियाज अपनी डार्क philosophical films से कुछ हटके करना चाहते हैं. इम्तियाज को अपनी फिल्म्स के लिए मिले हैं गुड रिव्यूज, पर बॉक्स ऑफिस पे उनकी फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है. इससे चेंज करने के लिए इम्तियाज इज वर्किंग क्लोजली विद बॉक्स ऑफिस के बादशाह शाहरुख खान. उनकी कोलैबोरेशन होगी एन आउट कॉमेडी फिल्म जिसमें होंगी अ फ्यू स्लैपस्टिक मोमेंट्स भी. स्पॉट बॉय को पता चला है कि शाहरुख और इम्तियाज ऑफन मीट अप टू एक्सचेंज आइडियाज. इन मिडनाइट मीटिंग्स के दौरान दोनों ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ओवर स्टोरी, कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस टू यूज इन द फिल्म. A source told Spot Boy, SRK and Imtiaz spend endless hours together and they have this fun senior-junior chemistry going on as both are alumni of Delhi University.
Shahrukh is usually telling him anecdotes and Imtiaz takes notes, sharing his own experience. Hopefully, अब इम्तियाज अपना बॉक्स ऑफिस लक बदल सकते हैं with Shahrukh's help. Celebs whose hands होते हैं full with big projects don't need to worry about their lifestyle. लेकिन what happens to those actresses who don't have big films? कैसे maintain करती है वो ladies अपना celeb status? We give you a detailed report. बड़ी गाड़ियाँ, बड़े अपार्टमेंट्स, the latest fashion, अब ये सब तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को चाहिए ही तो maintain their celeb status. स्टार्स जो करंटली बिग टिकट फिल्म्स कर रहे हैं वो तो अफोर्ड कर ही लेते हैं द बेस्ट, लेकिन कैसे करती है सर्वाइव वो एक्ट्रेसेस जो नहीं कर रहे हैं कोई बड़ी प्रोजेक्ट्स और इवन एडवर्टाइजमेंट्स? स्पॉट बॉय के पास है इसका जवाब, और वो है 3 चीज: इवेंट्स, वेडिंग्स और परफॉर्मेंसेस। स्पॉट बॉय को मिली है एक लिस्ट जो डिटेल में बताती है द अमाउंट्स एक्ट्रेसेस चार्ज फॉर इवेंट अपीयरेंसेस, वेडिंग्स एंड परफॉर्मेंसेस। टॉप ऑफ द लिस्ट पे हैं नेम्स लाइक बिपाशा बासु, चित्रांगदा सिंह, नेहा धूपिया, श्रेया सरन एंड गौहर खान। बिप्स चार्ज करती है एनीथिंग बिटवीन 15 to 20 lakhs फॉर एन इवेंट। अगर वो बनती है शादी की इनवाइटी तो बनता है चेक 22 lakhs का। और परफॉर्मेंसेस, वेल द जिस्म स्टार चार्जेस 25 lakhs to shake a leg। चित्रांगदा रही है आउट ऑफ द हेडलाइंस फॉर अ व्हाइल, लेकिन वो करती है इवेंट्स अपीयरेंसेस फॉर 15 to 18 lakhs। शादी में बाराते बनने के लिए वो चार्ज करती है 15 लाख और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो चार्ज करते हैं 18 लाख। नेहा की इवेंट फीस है 6 से 8 लाख और शादी का इनवाइट एक्सेप्ट करने का वो चार्ज करती है 7 से 10 लाख। उसी तरह एली अवराम को डिपॉजिट चाहिए ऑफ 3 to 5 लाख फॉर एन इवेंट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के लिए तो वो मांग लेती है 6 से 7 लाख। एंड वेडिंग्स, वेल एली अभी वेडिंग गेस्ट सर्किट में इतनी पॉपुलर नहीं हुई। On the other hand, गौहर चार्ज करती हैं 6 lakhs for an event और परफॉर्मेंस हुआ तो 12 lakh। सोनल चार्ज करती हैं 5 lakh for an event appearance, while श्रेया सरन चार्ज करती हैं 7 से 10 lakh। Well, ये तो हो गए हैं करंट एक्ट्रेसेस की बात। कुछ सीनियर एक्ट्रेस आज भी वेडिंग्स, इवेंट्स और परफॉर्मेंसेस के लिए चार्ज करते हैं। रति अग्निहोत्री लेती है अराउंड 2 to 3 lakh, पद्मिनी कोल्हापुरी चार्ज करती हैं 3 से 5 lakh। वही सोनाली बेंद्रे इवेंट अपीयरेंसेस के लिए चार्ज करती है 5 से 7 लाख। इस लिस्ट में सिर्फ 2 ऑलमोस्ट रिटायर्ड एक्ट्रेसेस हैं जिनका डांस परफॉर्मेंसेस आज भी वेल लाइट है। सुष्मिता सेन चार्जेस 30 लाख फॉर परफॉर्मेंस, वेडिंग अपीयरेंस के लिए 25 लाख और इवेंट अटेंडेंस के लिए 18 से 25 लाख। महिमा चौधरी चार्जेस 7 लाख फॉर अ डांस परफॉर्मेंस और 3 से 5 लाख फॉर एन इवेंट अपीयरेंस। करिश्मा करती है स्टाइलिश एंट्री इन इवेंट्स फॉर 7 to 10 लाख। वेडिंग्स में वो आती है फॉर 12 lakhs। अब ये तो हुई टॉप स्टार्स फ्रॉम बॉलीवुड की बात, लेकिन टीवी इंडस्ट्री के लोग कहाँ दूर रहेंगे? टॉक ऑफ द टाउन दिव्यांका त्रिपाठी अभी तो चार्ज कर रहे हैं 3 to 5 lakh फॉर एन इवेंट, एंड सो इज नागिन मोनी रॉय। करिश्मा तन्ना भी चार्ज करती हैं 3 lakhs फॉर एन इवेंट अपीयरेंस। तो सोचने वाली बात ये है that these actresses can earn up to 1 crore सिर्फ 4-5 इवेंट में अपीयरेंस देकर। Beats working for 4 months on a movie, right? Ranveer Singh has reason to worry because his lady love is going places in the West. Latest is कि Deepika was spotted with tennis ace player Novak Djokovic having dinner. More on this in our next report. दीपिका पादुकोण की ये पिक्चर्स करने वाली है tens of thousands of tennis fans को काफी jealous. The stunning lady went on a dinner date with the tennis ace Novak Djokovic. Wow, watch out for your girl Ranveer Singh. वैसे तो दीपिका XXX के सेट से अपने को-स्टार विन डीजल के साथ स्टनिंग पिक्चर्स ऑफन पोस्ट करती हैं, but this is huge even by her standards. Dippy और उनके नए फ्रेंड was seen dining at the Nice Guy, an A-lister bar in Los Angeles. By the way, Deepika is a big fan of tennis and of the man. वो देखी गई थी at Wimbledon for the 2015 finals where Roger Federer was playing Novak Djokovic. So that's all for now, guys. But before I wrap up, here is your question of the day. Post your comments on our portal spotboy.com and tell us if you think Siddharth's over-possessive behavior for Alia was justified. For now, this is me, Caitlin, signing off, but be back for the second edition of Spotboy.